Hi guys, welcome to this episode of Humans of Mahabharat with my sister Bhavna Didi and me, Amish. Didi, today we are going to discuss Dronacharya, the guru of the Pandavas and the Kauravas. A great guru, great teacher, but some areas of improvement as well, like with all people. लाइक विद एवरीवन ना गुरु द्रोण बचपन के जो सबसे महान अध्यापक थे आज तक याद हैं और जो उनने सिखाया जो ग्रूमिंग की गुरु बहुत ही पावरफुल होते हैं हाँ गुरु द्रोण में कमियां थी लेकिन गुरु रूपी ही वाज फैबुलस No doubt. मतलब हाँ जो वो सीख देते थे कि एक तो कस्टमाइजेशन सबको एक ही रंग में नहीं ढाला हाँ है ना तो अर्जुन को आर्चरी सिखाई तो भीम को गदा सिखाया फोकस सिखाया युधिष्ठिर को भाला फोकस रेपिटेशन अर्जुन बचपन में खड़ा रहता था करते रहो मैं वापस आऊंगा तब तक करते रहो रेपिटेशन द पावर ऑफ रेपिटेशन कराटे किड में जो था वैक्स ऑन वैक्स ऑफ wax off. सोचो मत बस करते रहो जो करना है तो द्रोणाचार्य भी आई मीन ही वाज अ गुड टीचर एंड देन अ गुड टीचर टीचर्स यू इन थिंक कि भाई स्टूडेंट खुद सोचता है कि यार मैं यहाँ कैसे पहुँच गया हाँ मसल मेमोरी में चला गया है ना तो गुरु तो कमाल के थे Renowned industrialist Mr. Harshvardhan Neotia on the Mahabharata. Dronacharya, the legendary teacher of Mahabharata, Brahmin by birth, warrior by choice, and a master of every martial art. As the royal preceptor, he trained both Pandavas and Kauravas, shaping boys into heroes, warriors, and rulers. Yet, beneath his imposing exterior, Drona was a man of deep contradictions, a mentor whose own ambitions and moral struggles shaped his destiny and those of his disciples. What made Dronacharya extraordinary? His dedication to teaching was unwavering. He inspired greatness in Arjun, nurtured the talents of all his students, and championed discipline, rigor, and strategic thinking. Drona believed that knowledge was sacred, and he demanded devotion in exchange. His sharp insight into each student's strengths and limits made him the formative influence in their lives. Yet Dronacharya's legacy remains troubled. He showed favoritism, most famously towards Arjun, leading to episodes of unfairness, especially in the case of Eklavya, from whom he demanded a crippling Guru Dakshina to secure Arjun's status. His pride, wounded by King Drupada's rejection, drew him into cycles of vengeance and moral complication, ultimately binding him to Duryodhan's side in a war he knew to be unjust. Torn between personal loyalty, professional duty, and the call of righteousness, Drona's choices forced him onto a path which ultimately led him to pain and loss. What does Dronacharya teach us today? In the modern world, he is the archetype of the brilliant but conflicted mentor, a leader whose pursuit of excellence can sometimes blind him to fairness and empathy. He urges us to honor teachers and respect expertise, but also reminds us unchecked ambition, bias, and holding old grievances can undermine even the finest intentions. Drona's flaws speak to every educator, parent, and leader, warning them against favoritism, vengeful pride, and the ethical costs of blind duty. If Dronacharya could address us now, he might say, nurture talent without bias. Be proud, but do not let pride drive your choices. In every act of teaching, let there be not only rigor and wisdom,
but also humility and compassion. And remember, true greatness comes not from victory and rivalry, but from inspiring others to surpass you and choosing what is right even when it is hard. जब सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे तब भी बहुत अच्छा सिखाया एकलव्य को. या दैट डिफाइंस मतलब कमजोरियां भी थी ना गुरु द्रोण में काफी. एकलव्य के साथ तो उन्होंने बहुत इनजस्टिस बहुत बड़ा की. अन्याय किया. एकलव्य उसके बावजूद जो बने वो अपने बलबूते पे बने. और एकलव्य का चरित्र था कि जो अन्याय उनके साथ हुआ उन्होंने उसे अपने जीवन को टॉक्सिफाई नहीं किया अपनी जिंदगी को. दैट इज सो इंटरेस्टिंग क्योंकि गुरु द्रोण ने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया ना. मतलब पूरा एक जो इंसिडेंट एक रिश्ता इट डिफाइंड गुरु द्रोण यू नो. उनकी पूरी जिंदगी टॉक्सिक हो गई उसके कारण. जिंदगी टॉक्सिक. लेकिन एकलव्य ने वो नहीं किया. तो गुरु द्रोण के साथ अमीश हुआ क्या. बचपन की दोस्ती ध्रुपद के साथ जो थी और बचपन की दोस्ती बड़ी जो अगर आप में से कोई ना जानते हो क्योंकि ध्रुपद इतने बड़े पात्र नहीं थे महाभारत में. द्रौपदी के पिता थे वो. हाँ और पांचाल के राजा. तो द्रुपद और द्रोण गुरु भाई थे. बचपन के घनिष्ठ दोस्त थे. हाँ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप ऑफ दोस्ती थी. और जो ध्रुपद थे उनने अपने दोस्त द्रोण को बोला कि जब बड़े होंगे तो सब 50-50 जो मेरा है आधा तुम्हारा है यू नो वो मैं गारंटी देता हूँ. अब ये तो मासूम दोस्ती थी. बड़े हुए तो द्रोण गरीब थे और उनकी जो पत्नी थी कृपि उनके बेटे थे अश्वत्थामा. फेमस कैरेक्टर. किसी दिन अश्वत्थामा के बारे में बात करेंगे. भयंकर इंसान. तो चिरंजीवी अभी भी जिंदा है. हाँ तो अश्वत्थामा जरा से थे और कृपि के पास घर में दूध नहीं था. तो कृपि ने अपने पति को याद दिलाया कि तुम्हारे जो वो मित्र थे अब राजा बन गए हैं. बोला था आधा किंगडम तुम्हें देंगे. एक गाय तो लेके आओ एक तुम्हारे बच्चे को दूध मिले. वैसे बीवी की जो ललकार होती है ना वो बहुत चुभती है है ना. ये भी है. तो एक्सक्यूज तो है गुरु द्रोण के पास. अब वो पहुँचे ध्रुपद के दरबार में और एंटाइटलमेंट के साथ बोले कि ध्रुपद तुमने तो कहा था कि तुम्हारी आधी जायदाद मेरी है लेकिन मुझे तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ एक गाय चाहिए. अब ध्रुपद हंसे उन पर कि तुम्हें गाय चाहिए मैं तुम्हें गाय देता हूँ लेकिन तुम्हारा हक नहीं है. ये मेरी चैरिटी है और तुम ले जाओ अपनी गाय. और द्रोण को ये बात भयंकर चुभ गई. एक्चुअली हिज लाइफ वॉज डिफाइंड बाय दिस लाई यू नो दैट इंजर्ड प्राइड. वो घायल आत्मा कि ये जो इंसल्ट उन्हें चुभ गई. पूरी की पूरी जिंदगी उससे डिफाइन हो गई ना. एक्चुअली मैंने एक इंटरप्रिटेशन ये भी पढ़ा था कि उन्होंने एकलव्य के साथ भी इसी कारण उन्होंने अन्याय किया क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन की पूरी लॉयल्टी सिर्फ उनके साथ हो ताकि वो अर्जुन और पांडवों का इस्तेमाल करके ध्रुपद पे अपना बदला ले पाए. वो काफी कुछ कर गए. बट यार फेवर मांग तो रहे थे ना. तो किसी से हेल्प मांगो किसी से फेवर मांगो तो ग्रेसफुली मांगना चाहिए ना. हक से थोड़ी. तुम्हारा हक नहीं बनता है किसी से मदद मांग रहे हो. बचपन की दोस्तियां अपनी जगह हैं. कुछ दोस्ती जो होती हैं अपन बड़े हो जाएं तो एक्चुअली कुछ दोस्तियां खत्म हो जाती हैं क्योंकि हम अलग ही डायरेक्शंस में बड़े हो जाते हैं. और फिर कुछ दोस्ती ऐसी होती हैं जिन्हें रीडिफाइन करना चाहिए. जब बड़े हो गए एक एडल्ट पर्सपेक्टिव लाना चाहिए. और मांगने का एक तरीका होता है ना. हेल्प मांग रहे हैं तो ग्रेसफुली मांगे, ग्रेटफुल हों. और फिर हक नहीं है भाई यू नो सामने वाला रिफ्यूज कर दे, नहीं दे पाए, तुम्हारा हक नहीं है. पता नहीं अलग तरीके से अगर मांगा होता शायद ध्रुपद आधा किंगडम ही दे डालते. दोस्ती दोस्ती होती है
है ना। तो मांगने का भी एक तरीका होता है। हाँ, वीरू के जय बनो। हाँ, मांगने का भी एक तरीका होता है। हाँ। लेकिन एक दूसरी तरफ से भी, क्योंकि हाँ ठीक है, द्रोणाचार्य को शायद कुछ ग्रेस दिखाना चाहिए था, शायद परिणाम अलग होता, लेकिन एक दूसरा भी पहलू है, क्योंकि जो राजा ध्रुपद ने जिस तरह से वो पेश आए द्रोणाचार्य के प्रति, द इंजर्ड प्राइड दैट द्रोणाचार्य फेल्ट, उन्होंने अपने शिष्यों का इस्तेमाल करके राजा ध्रुपद को हरवाया, एंड देन उन्हें काफ़ी बुरी तरह से इंसल्ट भी किया। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा पूरा राज्य मेरा है और मैं तुम्हें लौटाता हूँ। और इस कारणवश राजा ध्रुपद की, भाई वो घटनाक्रम सबको मालूम है, ही वांटेड वेंजेंस अगेंस्ट द्रोणाचार्य, और इसीलिए उन्होंने वो यज्ञ करवाया, द्रौपदी पैदा हुई, ऑल दैट हैपेंड। ही वांटेड टू बी द कॉज ऑफ द्रोणाचार्य's डेथ। तो क्या राजा ध्रुपद could have also shown some grace in how to say no? I agree with you कि भाई कुछ मांग रहे हैं, हाँ, और आजकल तो ये फैशन बन गया है, मांग भी रहे हैं तो हक से मांगे। हाँ, मैनर्स नहीं होता है। हाँ। लेकिन अगर कोई और सीनियर रोल पे है, किस्मत ने उसका साथ दिया है, तो शायद उसका दिल थोड़ा और भी बड़ा होना चाहिए। आजकल हर पहलू से मैनर्स दिखाया नहीं जाता है, मांगने वाला भी देने वाला भी। जो देता है, अरे अब मेरा फोटो छपाओ, जितना बड़ा अमाउंट नहीं होगा उससे बड़ा चेक बनाएंगे, नाम कहाँ है मेरा, नाम कहाँ है मेरा। ग्रेस और मैनर्स नहीं रहे। और ये शायद हम महाभारत से सीख सकते हैं कि एक्शंस अगर आपके वो ही हों, लेकिन आप ग्रेस और मैनर्स के साथ करें, परिणाम अलग होता है। तो मांगने का भी एक तरीका होता है और देने का भी एक तरीका होता है। एक दूसरी प्यारी सी बचपन की दोस्ती याद आई, श्री कृष्ण और सुदामा की। वो भी बचपन के दोस्त थे, और बड़े होके दोनों की जिंदगी एकदम जैसे कि रास्ते अलग अलग हो गए। सुदामा भी आए थे श्री कृष्ण के पास, और ऑफ कोर्स अब कोई बोलता है पोहा लेके आए थे, पोहे, कोई बोलता है सत्तू लेके आए थे। श्री कृष्ण की लीला ऐसी है, जो तुम्हें देना है वो मुझे लेना है। और सुदामा जब आए श्री कृष्ण के पास, तो वो श्री कृष्ण बहुत ही प्रेम से मिले अपने बचपन के दोस्त के साथ, और दोस्त मांग नहीं पाया। दोस्त मांग ही नहीं पाया, शर्म आ रही थी, और दोस्त है कैसे मांगू। हाँ, लेकिन अच्छा, एक तो ये है कि श्री कृष्ण अंतर्यामी है, दूसरा ये है कि वो दोस्ती क्या कि तुम्हारे दिल की बात दोस्त समझ नहीं पाए। तो वो समझ गए, और सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, और श्री कृष्ण ने देने का आभास भी नहीं जताया। हाँ, और सुदामा बिना मांगे दे दिया। ये होती है दोस्ती। हाँ। और सुदामा वापस गए तो उनका जीवन बदल गया था, मटीरियल से झोपड़ी महल बन गई थी। हाँ, और सब। हाँ, ये दोस्ती ये होती है। हाँ, और दोनों दोस्ती महाभारत में ही दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन वेदव्यास जी शायद हमें बता रहे हैं कि भाई एक तरह की दोस्ती ये होती है और एक ही है, तुम्हें कैसी चाहिए। हाँ। और सुदामा और प्रभु श्री कृष्ण की दोस्ती में दोनों ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हाँ। ये मर्यादा शब्द आजकल हैज टेकन ऑन वेरी डिफरेंट कॉनोटेशंस, बट बेसिकली इज दिस सदाचार, डिसेंसी, मैनर्स, बात करने का तरीका, मैनर्स इन हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू डील विद पीपल। किसी को बेइज्जत नहीं करो, और दोस्त हो तो दिल की बात, दिल का दर्द समझो, आंखों की शर्म समझो। हाँ, है ना। और रिश्ते को हक मत समझो। हाँ, जो द्रोणाचार्य ने किया। हाँ। आजकल तो परिवार में भी यही हो जाता है कि हक से बच्चे माँ बाप से पूछ रहे हैं, ठीक है वो तो बाल हट है, अब बड़े हो गए फिर भी भाई बहन से हक से मांग रहे हैं। यही तो रिश्तों को खराब कर देती है। मांगने की मर्यादा होती है, देने की भी मर्यादा होती है। हाँ। तो शायद इन दोनों से ये सीख सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो है वो इंजर्ड प्राइड, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। इंजर्ड प्राइड, सोचा जाए तो वो एक इवेंट था। उस एक इवेंट ने इतना, मतलब द्रोणाचार्य ऑब्सेस्ड हो गए। आज भी सोशल मीडिया में देखें तो नेगेटिव कमेंट से कितना बात का बतंगड़ बन जाता है। और या तो इतना हाइपर विजिबल नहीं बनो,
सोशल मीडिया में, विड्रॉ ही कर जाओ, यू नो। इतना मतलब नेगेटिविटी, अच्छा जो भी पोस्ट किया है, अब यू नो जब जान पहचान नहीं है तो लोग कुछ भी लिखते हैं, इग्नोर कर दो। और आपकी प्राइड अगर इंजोर हो जाए तो आप जबरदस्ती उसको रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ, आजकल तो कुछ देशों के राष्ट्रपति भी रिप्लाई कर देते हैं कोई। अच्छा तुमने ये क्लैप बैक सुना है? नहीं, ये क्या है? हाँ, क्लैप ये है बैक। अरे तो अच्छा, इसे कहते हैं बैड जोक। तो क्लैप बैक ये है कि कोई नेगेटिव कमेंट अगर सोशल मीडिया पे आए तो एटीट्यूड ये, अंदाज ये है कि आप मुझ पे हंस रहे हैं, मैं भी खुद पे हंस लेती हूँ। क्रैक अ जोक, यू नो, ह्यूमर से ग्लांस कर, हाँ, यू नो सेल्फ डिरिजिवली। तो ह्यूमर से एकदम, हाँ जैसे आपने बोला, ग्लांस कर लो और टेक इट इन योर स्ट्राइड, है ना। अब तुम मुझे हर्ट करो, दर्द होगा, लेकिन रैंडमली किसी को मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, कोई लिंक नहीं है, कोई लिख रहा है, क्यों अपने आप को वल्नरेबल बनाना, Correct. है ना। इट कांट डिफाइन मी ना। तो वो शायद गुरु द्रोण कुड हैव साइड स्टेप्ड इट, यू नो, विद ह्यूमर, है कि नहीं? Correct. तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट, आई थिंक। and sometimes not responding also, even if, और ये सोशल मीडिया में तो आजकल because so many of the kids are on social media all the time, वो नेगेटिव स्पाइरल हो जाता है। जैसे द्रोणाचार्य और ध्रुपद के साथ हुआ, he felt injured pride, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया, तो फिर ध्रुपद ने रिस्पॉन्ड किया, और एक मतलब ऐसे के आरोप प्रत्यारोप जैसे मतलब बस चल ही रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, तो ये सोशल मीडिया में भी, हाँ, अगर कोई आपको कुछ बेवकूफ़ी की बात बोल दिया उसने, चलिए ठीक है, और शायद वो कोई रैंडम अनोनिमस अकाउंट ना हो, आपका कोई जाना पहचाना हो, भाई रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत थोड़ी ना है हर बार। कभी कभार ठीक है, अगर मतलब आप शांत मन से आपको लगे कि भाई यहाँ रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो ठीक है, कर दीजिए। लेकिन ज़्यादातर ये अगर इग्नोर ही कर दिया जाए तो शायद बेटर है। आप वो बेस्ट है, इग्नोर करो। क्यों अपनी ऊर्जा वहाँ पे व्यस्त कर रहे हैं? एक ये कियानो रीव्स का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था। एक्टर है, अभिनेता है, हॉलीवुड का है, लेकिन जहाँ तक मैं उसे जानता तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है बहुत सीधा अच्छा आदमी है, और उसके ऊपर भी मतलब उसकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन रही है, हाँ, लेकिन कभी जताता नहीं है वो, और शांत रहता है, लोगों की मदद करता है, क्वाइट चैरिटी करता है। और उसका एक स्टेटमेंट था, आई एम एट अ प्लेस इन लाइफ वेयर आई डोंट फील द नीड टू रिस्पॉन्ड टू स्टूपिड कमेंट्स। You know, he said if someone comes and tells me 2 + 2 is 5, I'm like, yeah, you're right, man. Just stay be happy. Be happy. And essentially, in a way, it's slightly laughing at the other person also. Like, यार तेरा ड्रामा मुझे नहीं लेना है, तो खुश रहे, ठीक है। ये भी शायद एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है जिंदगी, स्पेशली सोशल मीडिया जिंदगी। हाँ, बट यू नो मैंने पढ़ा है ऐसे भी यू नो लोग हैं जो दे फील वायलेटेड, दे फील कि उनके साथ वायलेंस हुआ है सोशल मीडिया पे, नेगेटिव कमेंट्स, मतलब वो हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। वर्ड्स आर वायलेंस। हाँ, वर्ड्स आर वायलेंस। और सोशल मीडिया में आपको अपना अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। हाँ, सही है मत। हाँ, और सोशल मीडिया में इंसल्ट्स ना हो, ये आशा करना तो ऐसी हो जाएगी कि भाई अब ऐसी आशा करें कि किचन में आग ना हो। भाई खाना पकाना है तो आग तो होगी, और आपको अगर गर्मी पसंद नहीं है तो किचन में ना जाएं। और अगर आप इंसल्ट हैंडल नहीं कर सकते हैं या इग्नोर नहीं कर पाते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट ही मत रखिए। बट यू नो कमिंग बैक टू द्रोणाचार्य जी, थोड़ी तो इवन एज अ गुरु, इवन एज अ टीचर, फेवरेटिज्म तो करते थे ना। तो भीम को ज्यादा अच्छी गदा सिखाई दुर्योधन अगर उतने ही टक्कर के गदाधारी बने तो बलराम ने ट्रेनिंग दी। एग्जैक्टली। हाँ, तो के कारण फेवरेटिज्म तो करते थे। नहीं, आप सही कह रही हैं। और अगर वो भीम और दुर्योधन के बीच फेवरेटिज्म ना करते तो क्या दुर्योधन का भी चरित्र क्या वो बदल जाता? क्योंकि फेवरेटिज्म चुपता है ना, भगवान जाने। हाँ, शायद। और फिर से दोहराऊंगा, ये एकलव्य और दुर्योधन में भी शायद यही फर्क है। हाँ, क्योंकि हाँ, दुर्योधन और भीम के प्रति तो ठीक है उन्होंने फेवरेटिज्म दिखाई, लेकिन उस हद तक नहीं जो अर्जुन और एकलव्य के बीच। हाँ, वो तो मतलब एक भीषण अन्याय था व्हाट ही डिड टू एकलव्य। और ये एकलव्य का महान चरित्र था कि उन्होंने इस अन्याय को पॉजिटिव टर्न दी और एकलव्य बन गए। एकलव्य बन गए। हाँ,
ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने फिर से सीखा, मतलब हाउ डू यू फायर विदाउट योर थंब, हाउ डू यू शूट एन एरो विदाउट योर थंब। तो ये सही लेकिन बोला। उन्होंने सीखा कि कैसे करें। हाँ, ये सही बोला। टॉक्सिक रिएक्शन नहीं हुआ उनका। हाँ। तो ये तो दिस इज अ क्रेडिट टू एकलव्य, हाँ उनके गुरु को नहीं, द्रोणाचार्य को नहीं। हाँ, तो क्योंकि फेवरेटिज्म शायद कभी इस रूप से कभी उस रूप से सबके साथ होता है, लेकिन तुम्हारा रिस्पांस क्या है? तो एक तो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, जो फेवरेट ना हो, वो कैसे रिएक्ट करे। लेकिन दूसरा, मोर इम्पोर्टेंटली, जो पावरफुल रोल्स हैं हमारी परंपरा में, तो हरदम माँ और गुरु होते हैं। माँ और गुरु तो भगवान से भी परे हैं। एटलीस्ट माँ और गुरु में, उन दोनों को कभी फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, शिष्यों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट दे शुड एटलीस्ट ट्राई। पिताजी कर ले तो ठीक है, वैसे आप तो फेवरेट थी पापा की। नहीं, मजाक कर रहे हैं। हम सब भी फेवरेट थे। मैं अकेली बेटी थी। लेकिन द्रोणाचार्य फुल सर्कल अगर करें, उनकी मौत मतलब आत्मसमर्पण किया। अब मैं तैयार हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता। और उनकी मौत तभी हुई जब उनने हथियार डाले, नहीं तो उनको हराना नामुमकिन था, है ना। और छल से मारा, छल से मारा गया उनको। तो शायद खूबियां तो बहुत थी, लेकिन शायद जिंदगी में जो गलतियां की, यही हम एक परंपरा सब धार्मिक इस संस्कृतियों में होती है कि मौत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और उनकी मौत तो अच्छी थी। हाँ, इट वाज अ नोबल डेथ। हाँ, और ये others did an unfairness to him, हाँ, but he accepted it. और ये तो है, मतलब मैं बोलूंगी, किसी का दिल मत तोड़ो, परिणाम बहुत ही अगली होंगे। क्योंकि उनके बचपन के दोस्त ने उनका दिल तोड़ा, है ना। करेक्ट। और ये गलत बात है, किसी का दिल मत तोड़ो जितना हो सके। हाँ, विष पैदा हो जाता है, विष पैदा। और फेवरेटिज्म मत करो जहाँ तक हो सके। Especially as a teacher. Especially as a teacher, especially as a mother. And as a guru. आज गुरु और टीचर में आजकल तो फर्क तो है, क्योंकि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं सिखाते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं। वहाँ शायद गुरु द्रोण he could have done better, कि constructive, you know, कि दुर्योधन न बनते। You know, एक गुरु द्रोण की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बचपन में उन्होंने युधिष्ठिर को बोला कि जाओ पूरी दुनिया में घूम के आओ, और उस एक इंसान का नाम मेरे पास लेके आओ जो तुमसे बेहतर है, और उस एक इंसान का नाम लेके आओ जो तुमसे बदतर है। युधिष्ठिर चल दिए, और फिर दुर्योधन को भी बोला कि तुम भी जाओ, और समवन बेटर समवन वर्स। और युधिष्ठिर वापस आए और बोले कि मुझसे बदतर तो मुझे कोई भी नहीं मिला, और बेहतर तो बहुत मिले, यू नो। जो अपने दिल में मैं झांका तो मुझसे कोई बुरा नहीं। और दुर्योधन जब वापस आए तो उनने बोला कि अरे आई एम द रॉक स्टार ऑन प्लैनेट अर्थ। No one better than me. No one better than me. Everyone is worse than me. तो गुरु द्रोण ने ट्राई तो किया था, लेकिन चरित्र निर्माण कर नहीं पाए। डिफिकल्ट होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। उसे माँ का हाथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ माँ या गुरु। हाँ। I think this is a wonderful place to end this episode on Guru Dronacharya. Such fantastic qualities. लेकिन हाँ, कुछ सीख भी सकते हैं उनसे कि उनकी खामियां क्या। Don't be easily insulted. Don't be easily insulted. मैंने एक ये पढ़ा था कहीं पे, if you're easily insulted or outraged, you are easily manipulated. So try and control that, because people can manipulate you very easily then. Now, I think this is a great place to end this episode of Humans of Mahabharat on Guru Dronacharya from Bhavna Didi and me. Thank you for joining. Namaste. And yes, of course, if you like this episode, please hit like and subscribe so you can receive a notification when the next episode launches. Bye.